Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, subject Social Science, chapter number 13, Manufacturing Industries Part 2. So friends, in last video we talk about the importance of the industries and classification of the industries. In that we talk about cotton industries. Now, in today's video, we have to talk about uh, another agro-based industries as well as chemical industries. Okay, so uh, before I start video, always I am telling that keep a notebook and pen with you, and whenever you think that this is important note, that you must write down in your notebook, and that will be help you in your revision work. So like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. So one another agro-based industries which is very flourishing in our country, that is jute textile industries. So this is the picture of jute crop. This is exactly jute crop. अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें से जूट के थ्रेड और रॉप्स बनते हैं. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है वो हम देख रहे हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट and takes the second place of an exporter after Bangladesh. There are about 70 jute mills in India, but most of them are concentrated in places like West Bengal, that too mainly in Hooghly Basin in a narrow belt 96 km long and 3 km wide. The jute industry supports about 2.61 lakh workers directly and 40 lakh small and marginal farmers who are engaged in cultivation in jute and mesta. But they face a variety of problems like competition from international market, from countries like Bangladesh, Thailand, Brazil, Philippines and etc. सो जूट कैसे बनता है? तो इस तरह से जूट के प्लांट में से उसके थ्रेड बनाए जाते हैं. आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये, और इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है. ये जूट मिल का पिक्चर है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है. जूट इज़ second ranked major industry of India. India holds first place in the production of jute and goods made from jute. India is at second place after Bangladesh in the export of jute. Of the total jute production of the country, West Bengal produces about 80%, 80%, Andhra Pradesh about 10%, and the rest is produced by Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Assam, and Tripura. Much water is needed to purify jute, so most of the mills are located on the bank of Hooghly River. This industry is concentrated in West Bengal due to cheaper labor force, banks, banks and insurance coverage, port for export facility, etc. तो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में ये प्रोडक्शन होता है जूट का. उसके जो फैक्टर्स है वो फर्स्ट है कि वहाँ पे लेबर चीप होता है. सेकंड है कि वहाँ पे बैंक और इंश्योरेंस का कवरेज अच्छा है. और अनदर दैट इज़ द पोर्ट रीजन, तो वहाँ से एक्सपोर्ट फैसिलिटी बहुत इजी हो जाती है. टुडे द डिमांड फॉर जूट हैज़ डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ अदर ऑप्शंस इन पैकेजिंग मटेरियल फॉर गुड्स, जैसे प्लास्टिक है, पेपर बैग्स है. Jute industry is facing such problems like more cost of production and decreasing demand of jute in international markets. क्योंकि पहले के ज़माने में जो प्रोडक्शन पैकेजिंग होता था वो जूट की बैग में होता था. घनी बैग भी हम जिसको बोलते थे.
अब आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे पैकेजिंग ऑप्शंस है, मेजर तो प्लास्टिक है, उसकी वजह से जूट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है एंड जूट इंडस्ट्री इज सफरिंग विद सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सिल्क टेक्सटाइल। तो ये है सिल्क टेक्सटाइल। इंडिया में देखिए ये सब जगह पे सिल्क प्रोड्यूस होता है और पहले के ज़माने में यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से सिल्क हम लोग सेल करते थे और ये सिल्क वॉर्म है, इसमें से सिल्क बनता है। सबसे पहले जो सिल्क प्रोड्यूस हुआ था वो चाइना में हुआ था और चाइना ने 1000 ईयर्स तक वो सिल्क की टेक्निक किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि सिल्क वॉर्म में से उसको बनाया जाता है, इसमें सिल्क वॉर्म को मारा जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज सिल्क। सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन्स secreted in the fluid state by a caterpillar, popularly known as silkworm. This silkworms feeds on the selected food plants and spin cocoon as a protective shell to uh, perpetuate the life. Silkworm has four stages in its life cycle: egg, caterpillar, pupa, and moth. Many interferes this life cycle. Man interferes this life cycle at the cocoon stage to obtain the silk, a continuous filament of commercial importance used in weaving of the dream fabric. तो ये इस तरह से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता था, दैट इज अगेंस्ट द नेचर, यानी आपके पास राइट्स नहीं है कि आप अपने नीड्स के लिए किसी और को हार्म करो। तो इसकी वजह से चाइना ने 1000 ईयर्स तक ये किसी को बताया नहीं था कि वो कैसे सिल्क बनाते हैं। बट आज की डेट में तो अब सिंथेटिक सिल्क भी प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सिल्क प्रोडक्शन हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन। आफ्टर चाइना, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। अब ये एमसीक्यू में आ सकता है। In India, four types of silk are produced. These are mulberry, eri, tassar, and muga. Today, there are about 300 silk weaving mills in India. Major states producing silk are Karnataka, Madhya Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Punjab, and Jammu Kashmir. Silken clothes are exported to Europe, Africa, Gulf countries. Besides, these are also exported to Germany, Singapore, USA, Kuwait, Malaysia, and Russia. In international market, India silk is facing a tough competition from China, क्योंकि China is the motherland of the silk. इसके बाद जो एक है वो है वुलन। तो ये वुलन का है, इस तरह से वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है। Distribution of woolen textile industries, main concentration in Punjab, Haryana, Maharashtra, UP, Gujarat, Karnataka, West Bengal, and Jammu and Kashmir. Punjab leads Dhariwal, largest center, other centers Ludhiana and Amritsar. Maharashtra center at Mumbai, UP center at Kanpur, Gujarat, Ahmedabad. Kashmir woolen products prepared from locally available fine quality wool. रेडी मार्केट थ्रू आउट द कंट्री। इम्पोर्ट सेंटर श्रीनगर। श्रीनगर का वूल बहुत ही फेमस है। और जो डिटेल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मॉडर्न वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाल इमली एट कानपुर। रूल बेस्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज provided employment to around 30 lakhs. Industry depends on imported raw material because domestic produce is inadequate. Wool is the only natural fiber in which India is deficient. Small quantity of specialty fiber obtained from pashmina sheep and अंगोरा रैबिट्स। तो ये एनिमल से हमें कम्प्लीटली मिलता है। As a cottage industry, the history of woolen textile industry is very old. Maximum woolen textile mills are in Punjab. Next comes Maharashtra. There are woolen textile mills in UP also. Ahmedabad and Jamnagar in Gujarat are centers of woolen clothes. Other major centers are Bikaner and Jaipur
in Rajasthan, Srinagar in Jammu Kashmir, and Bengaluru in Karnataka. India also produces woolen carpets, woolen clothes is exported to America, Canada, Germany, France, and Russia, etc. After that, सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये मैप है कि कहाँ कहाँ पे है और ये इस तरह से उसको प्रोड्यूस किया जाता है. तो आजकल ये बहुत डिमांड में है और चीपर भी है. द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिटेन रिंकल. हैंस द इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेरी मच. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक चलता है और इसको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ है वो स्पीड से डेवलप हो रही है. द कॉटन फाइबर आर मिक्सड विथ सिंथेटिक फाइबर टू गेट मिक्स वेराइटी ऑफ क्लोथ. फिर जो कॉटन फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर, उसको सिंथेटिक फाइबर से मिक्स करके अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है, जो हम नाम जानते हैं. टेरी कॉटन, ये सब जो नाम है, कॉटन, टेरी कॉटन, ये मिक्स फाइबर है. द कॉटन फाइबर्स आर मिक्सड विथ सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन जैसे हम बोलते हैं, पोलिएस्टर, मिक्सड विथ सिंथेटिक फाइबर टू गेट मिक्सड वेराइटी ऑफ क्लोथ. मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एक्सेट्रा. अदर सेंटर्स आर सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर, एक्सेट्रा. उसके बाद है शुगर इंडस्ट्री. यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बुक में आपके खाली डिटेल्स दी है, वहाँ पे ऐसा कोई पिक्चर नहीं है और ऐसे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी नहीं है. ये आपको यहाँ वीडियो में ही देखने को मिल रही है. तो शुगर इस तरह से प्रोड्यूस की जाती है. ये शुगर मिल का फ़ोटो है. और इंडियन गवर्नमेंट ऑन शुगर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी ऑन August 20, 1998. Licenses for new factories which show that there will be no sugar factory in radius of 15 km. Setting up on Indian Institute of Sugar Technology at Kanpur. In 1982, the Sugar Development Fund was set up to modernization of the industries. तो ये रिफॉर्म्स हुए हैं. और यहाँ पे है ओवरव्यू देखते हैं. लोकेटेड इन रूरल हार्टलैंड, डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड्स टू रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो मोस्टली रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है. सेक्टर सपोर्टिंग 50 million फार्मर एंड देयर फैमिलीज अराउंड ₹55,000 crore कैन प्राइस पेड इन 2010-11. Generates employment for around 12% of the entire rural population in major 9 sugar producing states. One of the most environment friendly industries serving several requirements. The requirements क्या है? Supplying eco-friendly bags based energy for consumption, approximate potential 4,000 to 5,000 megawatt. Mainstay of alcohol industry and eco-friendly ethanol blending policy. Significant position in the global sugar space. Largest consumer and second largest producer in the India. World sugar prices impacted by India's export import decision. तो हमारा शुगर मार्केट के ऊपर बहुत कंट्रोल है. Making jaggery from the sugarcane juice is very old industry in India. Sugar industry stands second after textile in agrarian industries in India. After reaping the crop of sugarcane, it has to be squeezed with 24 hours so that the amount of water is not reduced. Otherwise, its sugar content will decrease. That is why the sugar factories are located near sugarcane growing centers. यानी 24 आवर में इसको स्क्वीज़ नहीं किया तो उसके अंदर की शुगर क्वांटिटी कम हो जाती है. इसलिए शुगर फैक्ट्रीज जो होती है वो शुगर केन के जहाँ फार्म होते हैं उसके आजू बाजू होती है. Sugar factories are located in Maharashtra, UP, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, etc.
This industry is developed in Gujarat at Bardoli, Gandevi, Surat, Navsari, Vyara, Bharuch, कोडिनार एंड तलाला गिर। तो गुजरात में ये सब जगह पे शुगर इंडस्ट्रीज़ है। और एक जो हमें बात करनी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, वो है पेपर इंडस्ट्रीज़। तो ये है पेपर इंडस्ट्रीज़, इस तरह का अंदर का सिनारियो होता है। यहाँ पे ये सब प्लेसेस है। Accounts for about 1.6% of the world's paper production. It is mainly plantation based. The industry provides employment to more than 0.12 million people directly and 0.34 million people indirectly. तो ये उसका ग्रोथ है कि किस तरह वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए area of concern. India is a wood fiber deficient country. Inadequate raw material availability domestically is a major constraint for the paper industry. 90% of wood demand met through industry driven agro social forestry, 10% through government source and imports. Current demand for pulpable wood by paper industry is about 11 million tons per annum, while domestic availability is 9 million per annum. Ton per annum. TPA means ton per annum. Annum yani year. Demand project to rise to 15 million TPA by 2024-25. Government is the process of finalized guidelines for participation of private sector in afforestation of degraded forest वेलकम। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है कि जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप करें, और स्पेशली पल्प वुड चाहिए इसके लिए। तो ऐसे फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर रही है। Paper is made out of soft wood, bamboo, grass, molasses, etc. It is produced in Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Haryana, etc. तो ये सब मैप वर्क में आपके आने के चांसेस हैं। अब अगर हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सो दिस इज़ द बैकबोन ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी, and these all are called large scale industries जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट फैक्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल फील्ड, ये सब। Those industries wherein minerals are used as raw material are known as mineral based industries. तो ये इसकी definition है। Industries such as iron and steel industries, aluminum industry, copper, chemical, fertilizer, cement, means of transportation and electrical goods are mineral based industries. उसमें सबसे पहले आयरन एंड स्टील प्लांट, तो ये है पूरी उसकी डिटेल कहाँ पे है, ये भी है कितना हमारा प्रोडक्शन है, यहाँ पे पूरा ये डिटेल है, कौन सी कंपनीज़ है यहाँ पे। क्रूड स्टील में तो BSP, DSP, RSP, BSL, ISP, सेल, टाटा स्टील, RINL, SR, ISPAT, JSW, ये सब ये प्रोडक्शन में आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में एंगेज है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील है 2009-10 में 3,235 टन हमने एक्सपोर्ट किया था। सो लेट्स सी योर टेक्स्ट बुक वर्ड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द एक्सिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस इंडस्ट्री, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें आयरन होते हैं, बड़े बड़े मशीन में भी आयरन हमें चाहिए। मशीन्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन। This can be also considered to be a key industry. The process of making iron is very old in India. Iron was imported from India to make sword and uh, Damascus. The first factory in India
First factory in India to produce iron was established in Port Nova in Tamil Nadu. तमिलनाडु में ये सबसे पहले इंडस्ट्रीज हमने एस्टेब्लिश की थी आयरन प्रोडक्शन में. ये जो दमास्कस है वो प्लेस का नाम है, वहाँ पे स्वॉर्ड बनाई जाती थी. It was closed due to some reasons. A successful production of raw iron was made at Kulti. In 1907, the factory established at Jamshedpur started producing iron steel on very large scale. Factories were established at Berhampur in West Bengal and at uh, Bhadravati in Karnataka. Iron and steel factories were also established in Bhilai, Rourkela and at Durgapur. तो ये प्लेसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसको आपको मैप वर्क में याद रखना है. यहाँ पे सब प्लेसेस आपको मैप में दिखी जाएंगे, लोकेशन कि कहाँ पे क्या है. तो ये भिलाई स्टील प्लांट आपको दिख रहा है और ये मैप में भी आप देख सकते हैं प्लेसेस स्टेट वाइज यहाँ पे लोकेशन दिए हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट दिए हैं. विजयनगर है, सालेम है, ये भिलाई, रूरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस है. इसको आपको याद रखना है, ये मैप वर्क में 100% आ सकता है. अदर लार्ज स्केल फैक्ट्रीज were founded in Bokaro, Visakhapatnam and Salem. आयरन और कोल, लाइमस्टोन. तो आयरन और कोल के बारे में हमने चैप्टर 12 के वीडियोस में सब डिटेल्स में देखा है. एंड मैंगनीज आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील. आयरन कैसे प्रोड्यूस होता है उसका भी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था. अ मिनी स्टील प्लांट हैज़ बीन फाउंड नियर हजीरा इन गुजरात. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल iron steel factories except Tata is handed over to Steel Authority of India Limited, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है. इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन. तो यहाँ हम 5th पोजीशन पे हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो तो वी अर्न लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज by making different kind of machines and tools in our country. इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है वो है ये देखिए टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में. ये सब कंपनीज है जो प्रोड्यूस करती है. यहाँ पे देखिए ये पूरा किस तरह से आयरन प्रोड्यूस होता है उसकी पूरी की पूरी मेथड यहाँ पे है. रोलिंग एंड शेपिंग, आयरन मेकिंग, किस तरह से ये पूरा बनाया जाता है. ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे दिखाया नहीं गया है. पहले मोल्ड किया जाता है, फिर कास्टिंग किया जाता है, फिर रोल एंड शेपिंग, उसको शेप दिया जाता है. स्टील ट्यूब्स एंड पाइप, स्टील सीट्स, हॉट वाटर स्लेग, फिर मार्केट में जाता है. कल्चरल इनपुट्स, पावर सप्लाई, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट, मार्केट. फिजिकल इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग कोल, आयरन और स्क्रैप आयरन, स्टील एंड लाइमस्टोन लैंड. तो ये सब उसकी प्रोसीजर है, इस तरह से आयरन प्रोड्यूस होता है. फिर ये है एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम कहाँ प्रोड्यूस होता है ये पूरा मैप में यहाँ पे दिखाया है और ये उसकी प्रोसीजर है कि किस तरह से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है. देखिए स्टेप 1 डाइजेशन, स्टेप 2 क्लैरिफिकेशन, स्टेप 3 प्रेसिपिटेशन. आप यहाँ पे स्टेप्स उसके देख सकते हैं. एंड स्टेप 4 कैल्सिनेशन. और यहाँ पे इस तरह से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है. आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. The mineral is light in weight, strong, malleable, smooth conductor of electricity and rust proof. इसके ऊपर rust नहीं लगता है. Bauxite is the aluminum ore. Other minerals are mixed with aluminum which is useful in making cars, railways, aeroplanes and machines.
about 40 to 50% of expenses is incurred in electricity. So this industry is founded where hydroelectricity and bauxite are available easily. तो ज़्यादातर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है, इसलिए जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली प्रोड्यूस होती है ऐसा कोई रीजन, या तो जहाँ पे बॉक्साइट और बॉक्साइट जो है मेन मेटल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें से ही एल्यूमिनियम बनता है, तो वो जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे एल्यूमिनियम रिफाइनरी आपको मिलेगी. फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम आर एस्टेब्लिश इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है. उसके बाद है कॉपर रिफाइनिंग. तो ये देखिए कॉपर, इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनती है कॉपर की. यहाँ पे कुछ और भी डिटेल है. 7th लार्जेस्ट copper smelter in the world, capacity to produce 4 lakh tons every year, accounts for 38% of copper needs in domestic market, runs into problems every now and then due to protection by locals. डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है यहाँ पे. और ये इंडिया में कहाँ पे कॉपर मिलेगा वो सब प्लेसेस है. ये मैप मैंने हो सके उतने इंडस्ट्रीज़ में रखे जिससे आपको आइडिया आए. द यूजेज ऑफ कॉपर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू प्रॉपर्टीज सच एज ईजी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कैन बी मिक्सड विद अदर मिनरल्स ईजीली. तो एलोइस बनाने में कॉपर बहुत यूज़फुल है, और इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में. कॉपर इज़ यूज़फुल इन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, in making of refrigerator, air conditioner, automobiles, radiators, domestic utensils, etc. अब ये important line है. First copper refining unit of India was founded by Indian Copper Corporation (ICC) at Ghatsila in Jharkhand. In 1972, ICC was handed over to Hindustan Copper Limited (HCL). Besides HCL today, copper is produced by private sector also, yet the domestic production is not enough, so it has to be imported. तो जितना कॉपर का हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है, उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है. तो ये है आपकी कॉपर इंडस्ट्रीज़. तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में. अब यहाँ तक जो भी आपने देखा है, वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम एंड आस्क योर क्वेश्चन. एंड आई होप दैट यू प्रिपेयर योर नोट. बेसिकली दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप वर्क. स्पेशली मैप वर्क में यहाँ से बहुत आने के चांसेस है. इट इज़ 5 mark मैप वर्क. यू कैन गेन 5 mark very easily if you remember all the details properly. ठीक है. So I hope that you like this video. Share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.